پیلا اس بچے کا کیا نام ہے باجی؟ ابراہیم ابراہیم نام ہے، اور اس کے فادر ڈیتھ ہو گئی. یہ وڈو ہیں، ان کا نام کیا فادر کا؟ ندیم احمد. اچھا دیکھیں، ایک تو پینشنر سمپل ریٹائر ہو کے زندہ ہے، لیکن انہیں بھی زندہ درگور کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ انہیں جیتے جی مارا جا رہا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو کہ جن کے شوہر ہیں ہی نہیں. کم از کم یہ بیوہ وڈو کا کیس تو الگ کر کے انسانی بنیادوں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اسے تو الگ ڈیل کیا جائے نا بھائی. اور پھر بیٹا لیور ٹرانسپلانٹ پرسکرائب ہوا ہے، اس کا لیور فیل ہے، اس کے پاس چانس، ماں نے کچھ پیسے بچائے ہیں، اپنی فیملی میں کچھ جمع کیے ہیں، کچھ MKM پاکستان اور گورنر سندھ سے مدد کی درخواست کی ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں گے. لیکن ان کے بقایا جات اگر مل جاتے ہیں، گریجوٹی، پروویڈنٹ فنڈ، کمیوٹیشن، اس ندیم کے جو کہ دنیا میں نہیں ہے، اس کے بچے کو تو جینے کا حق ہے نا یار. کم از کم اس کے لیے کچھ کر دیں. یہ تو دیکھیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کرے، 2 سال کا پلان دے. کوئی 12 مارچ، 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا اس فیصلے کو. MKM آئیے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے، اس کے پلان پر جلد از جلد عمل درآمد کرانے. اور عمل درآمد تو آئندہ کے لیے ہوگا جو اب نئے پینشنرز ہیں، تاکہ ان کی لسٹ ابھی سے بن جائے، تاکہ ان کا مسئلہ نہ ہو 2 سال بعد TMC ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، نہ KMC کی محتاج ہو، نہ حکومت سندھ کی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ، بلدیات کا محکمہ سندھ کا اور KMC انشور کرے کہ TMC ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اپنے پیروں میں کھڑی ہو، تاکہ آگے یہ مسئلہ نہ ہو. ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم حکومتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے، لیکن ایسا انسانی المیہ، یہ ان کی زبان بول رہا ہوں میں، یہ ایسا انسانی المیہ ہو، حکومتی اداروں کی بدبختی ہو، بے حسی ہو، سفاکی ہو، بے رحمی ہو، بے دردی ہو، تو پھر ہمیں مجبوراً انسانی المیے کے نتیجے میں جو مقدمے ہوں گے ہمیں اس میں دخل دینا ہوگا. حکومت سندھ کو KMC اور TMC کو آرڈر دینا ہوگا. یہ آرڈر دیا ہے، نہ بقایا جات ملے، واجبات ملے. اچھا پھر یہ پیسہ گیا کہاں؟ اب TMCs کہتی ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ملازمین بھی کہتے ہیں بھئی کب تک یہ پیسہ کٹ کر KMC کے اکاؤنٹ میں گیا بتائیے ذرا. جا رہا ہے 40 سال ہو گئے. نہیں KMC یا TMC؟ KMC. اچھا آج بھی یہ پیسہ جو TMC کے ملازمین 25، ان کا پیسہ اب جو ابھی بھی ملازمین ہیں، حاضر ملازم، ان کا بھی پینشن، کمیوٹیشن، پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ کٹ کے جا کہاں رہا ہے؟ KMC کے اکاؤنٹ میں. تو بنیادی طور پر تو میئر KMC اور KMC کی انتظامیہ ذمہ دار ہے. وہ بتائیں نا یہ پیسہ گیا کہاں؟ 14 ارب، 12,000 ملازمین TMC کے ہوں گے، KMC کے شاید نہ ہو، لیکن یہ پیسہ گیا کہاں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت سندھ سے مانگوں گا. کورٹ میں کہا میئر نے کہ آپ محکمہ سندھ، محکمہ فائنانس، حکومت سندھ کو بلائیں. ابے بھائی تمہاری حکومت ہے، تمہاری پارٹی ہے، تمہارا وزیر اعلیٰ ہے، جا کے گھر بیٹھ جاؤ اور کہ یار یہ سمریے سائن کرو، میرے پاس پیسے نہیں ہے، 14 ارب تو مجھے دینے ہیں. سمپل سی بات ہے. اگر تم خرچ کر گئے، TMC خرچ کر گئی، یہ 20,000 غریبوں کا کیا قصور ہے؟ درخواست لینے کا منع کر دیا. درخواست لینے سے منع کر دیا. کون سی درخواست؟ 1500 نا، وہ تو بتا دیا میں نے، وہ تو میں نے بتا دیا. اب نئی پینشن کی درخواستیں ہی نہیں لے رہے میئر، KMC لے ہی نہیں رہی. مطلب یہ تو اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح تھوڑی انسان دستبردار ہو جاتا ہے کہ مینو کی، سانو کی. یہ تو رویہ کہیں اور کا ہے بھائی. یہ ہماری تہذیب میں تو یہ رویہ نہیں ہے، کراچی والوں کی تہذیب میں یہ رویہ نہیں ہے کہ سانو کی، مینو کی. یہ تو شاید کہیں اور کا، یا مٹی پاؤ. یہ ہمارا نہیں ہے بھائی، ہم مٹی نہیں پا سکتے. سانو ہی فکر کرن دینی ہے، کیا کہیں گے اسے؟ فکر کرنی پڑے گی. سانو ہی فکر کرنی پڑے گی بھائی. ہمیں اتنا تک تو ہو نہیں سکتا کہ چلو جو ریٹائرمنٹ ملازمین ہیں وہ
जिंदा हैं, हयात हैं, हाँ कम से कम आप बेवाओं का वही बाजी अलग चैनल चला यही कहा। तो आप जरिया हाँ देखिए ये भी यही कह रही है कि भाई जो बेवा बहनें हैं कितनी होंगी आप उनको काउंट करके हाँ उनके लिए तो आप पेंशन बाजी ये तो वो लोग करते हैं जिनमें एहसास हो, जिनके दिलों में दर्द हो, जिनकी सियासत में अखलास हो, जिनकी सियासत खिदमत के जज्बे से सरशार हो, तो होगा ना बाजी। तो नहीं है ना बाजी ये बाजी। अब तैयारी करें, अब तैयारी करें। बेटा जरा सा इधर हो जाओ, इधर इधर कैंसर से लड़ रही हैं, जी बाजी। मेरी अपनी साथी कैंसर से लड़ रही हैं, यकीन करें, एक साथी हैं वो बेवा हैं या मुलाजिम हैं? बेवा है और रिटायर्ड है मेरे साथ, वो बेवा भी हैं, रिटायर्ड भी, वो खुद मुलाजिम है और कैंसर से लड़ रही हैं। जिंदगी दो मेरे अपने टाउन से गई हैं और आखिरी वर्डिंग में जब भी उनको माजरत के साथ बात लंबी हो नहीं जाए कोई बात नहीं करें, आपका हक है। मैं ये उनसे खैरियत पूछती थी, बखुदा करके कह रही हूँ मैं, कि वो मुझसे कहती थी कि मुझे जिंदगी में पेंशन मिल जाएगी अपनी। अब देखें लोग कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी पेंशन। अच्छा वफाक के जितने मुलाजमीन हैं मेरे ख्याल में शाज़ व नादिर कोई एक महकमा है जहाँ कोई मसला है, हजारों की तादाद नहीं है। बाजी इधर बाजी इधर कि मुलाजमीन के साथ ये सलूक हो रहा हो। न पंजाब में है, न बलूचिस्तान में है, न केपी के में, न वहाँ की बल्दियात में, न वहाँ की मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ये मसला अगर है तो कराची में है या हैदराबाद में है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं रहते। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ये सवाल है 20,000 मुलाजमीन का। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम रोजाना खाते पीते नहीं हैं? क्या हम जिंदों में शुमार नहीं होते हैं? अरे मर्दम शुमारी में हमारी आबादी कम कर दो, लेकिन हमारा वजूद तो है ना। हमारे वजूद से तो इनकार नहीं करोगे ना। इस मुमलिकत को तो पहचान हमारे पुरखों ने दी है, हमसे वेरीफाई कर रही है, ये हमसे हमने शनाख्त मांग रहे हैं, ये हमसे शनाख्त मांग रहे हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान को शनाख्त दी, इन्हें पाकिस्तानियत दी। शनाख्त मांग कर रहे हैं, हमें वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं इनको। हमारी अमानत है, वापस कर दें। हाँ। हक रहने के लिए आया और बातिल मिटने के लिए आया। मैं बिल्कुल। किसी सियासी पार्टी से, लेकिन ये मेरा लोग है कि हक रहने के लिए और बातिल मिटने के लिए। कुरान में वाज़े और हक छा गया और बातिल बाजी आप किसी भी सियासी जमात से नहीं है, हाँ, लेकिन एमक्यूएम आपके साथ खड़ी है, एमक्यूएम आपके साथ खड़ी है, खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह अब तय करें बाजी, हम प्लान करें, आपस में अपनी लिस्टें बना लें। ये 20,000 मुलाजमीन आपस में एक दूसरे से रब्ता रहें, ताकि हम अगर मुख्तसर नोटिस पर भी जो केएमसी का दफ्तर है, कहाँ पर है? नहीं मुख्तसर नाम ना ले, केएमसी का दफ्तर कहाँ है? वो तो एक है, दूसरा भी तो है वहाँ पर, हसन स्क्वायर पे नहीं है, वो चला गया। अब क्या है? अब एमए जिना रोड, ओल्ड केएमसी बिल्डिंग पर या तो मुजाहरा करते हैं या वजीर आला हाउस पर करते हैं। सोच लें, फैसला कर लें। इस बच्चे के लिए हम स्पेशली देखेंगे क्या कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये कोर्ट के पास में 2-4 लफ्ज सुना दूं आपको। कोर्ट कह रही है, क्या कह रही है बाजी क्या लिखा है कोर्ट ने? Majority of petitioners, employees who retired from KIMSI or their respective TMCs after serving 30-40 years by expending their blood, अपना खून पसीना देने के बाद अब उन्हें इस हाल में छोड़ दिया गया है कि वो दर बदर हैं। ये कोर्ट लिख रही है, वो दर बदर। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। इससे हमारा दिल भी टूटा है। अदालत कह रही है हमारा दिल टूटा इससे, इनके अलमिये को देखकर। एस पेंशन इज नॉट चैरिटी। पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई फलाही पैसा नहीं है, बट इट इज एन एंटाइटलमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ मैनी। ये नाशुक्रापन है, ये एहसान फरामोशी है महकमों की, इदारों की, केएमसी की, टीएमसी की, कि उन्होंने इनका ही हक, इनकी ही तनख्वाह का पैसा आज जब ये वापस मांग रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। बेवाएं जो मुलाजमीन हैं या बेवाएं जो रिटायर्ड, जो गुजर गए मुलाजमीन की बेवाएं हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, कैंसर की मरीजों के इलाज के लिए अगर वो पैसा तुम नहीं दे रहे जो उनका हक है, तो कोर्ट कह रही है कि ये तो एहसान फरामोशी है।
इतने सालों की सर्विस के बाद ये इंसानी अलमिया है। कौन कह रहा है? फारूक सत्तार और एमकेएम नहीं, कौन कह रहा है? ये सिंध हाई कोर्ट। ये इंसानी अलमिया है और लोग हमारे दरवाजे पर आने पर मजबूर हुए। ये तो तुम्हें मसला हल करना चाहिए था, विच शुड हैव बीन अवेलेबल। और ये तो इनका हक है, ये तो इन्हें रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन जिस दिन हुई, जिस दिन ही रिटायरमेंट के एज पर गए, ये तो उसी दिन उन्हें बता देना चाहिए था कि भाई महीने की पेंशन इतनी, कम्यूटेशन, प्रोविडेंट, रिटायरमेंट फंड ये आपका, खत्म बात। ग्रेजुएटी ये आपकी, ये इस अरसे में मिल जाएगी, ये हमारे पास पड़ी है क्योंकि इसका अलग अकाउंट है और होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, आखिर में कह रही है कि इससे ज्यादा अबतर हाल बल्दियाती इदारों का पहले कभी नहीं था। ये कब? 2000 मार्च। ये फैसले में बता रहे हैं। पहले से अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? रिटायर अब कह रहे हैं अगले 2 साल का तैयार करो प्लान और पिछले वालों के बकाया जात दो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वाज़ेह फैसला अब ये अदालत का फैसला ना मानना, ये अदालत आला के तौहीन का इर्तिकाब करने के बराबर है। तो ये तौहीन अदालत का भी केस डालो भाई, ये भी करो। इन 6 पिटीशनों के फैसले पर अपनी पिटीशन को मजबूत करो, अपनी पिटीशन को बनाओ इम्प्लीमेंटेशन पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन, ये कह के करें, आप समझिए। और इसी पर आगे बुनियाद बनाकर आगे बढ़ो। मेरी खिदमत चाहिए, फ्री ऑफ सर्विस दूंगा मैं, कोई पैसा नहीं है। माशी डकैती, माशी कदर। बाजी आप लोगों को तो खुद बोलना चाहिए। 15 दिन बाद बुलाया, फिर 15 रोज के बाद सब हर जगह करेंगे भाई। ये तौहीन अदालत के हवाले से इफ्तिखार भाई, वापस मांग रहे हैं हमारी अमानत का इफ्तिखार भाई। अच्छा, ये तो हम करेंगे ना। हाँ नहीं, लेकिन इफ्तिखार भाई सीधा असेंबली में बताए। हाँ, जमात इस्लामी ने भी शायद इन 20,000 मुलाजमीन के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किया, कोई पिटीशन नहीं दी है। एमकेएम पाकिस्तान ने दी है। पीपल्स पार्टी की बेहिसी, बेदर्दी, सफाकी, बेरहमी, जुल्म, नाइंसाफी, एमकेएम का ये बहुत बड़ा रिलीफ एफर्ट, ये तहरीक इंशाल्लाह एक बड़ी तहरीक बनेगी। हम सिर्फ पेंशनर्स नहीं, इस तहरीक को लेके जहाँ जहाँ इंसानी इल्म जन्म ले रहे हैं, इंशाल्लाह उन सब के लिए लड़ेंगे। मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनको मजलूमों की दाद रसी करेंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ गुज़श्ता 2 साल से खड़े और आज भी खड़े हमारे साथ, याद रखेंगे इस चीज़। जी आवाज नहीं आ रही, आप जरा। सन कोटा तो अब तकरीबन हाई कोर्ट ने ही ख़त्म कर दिया है ना। एक मसला तो ये भी है ना, वहाँ भी अब सन कोटे के जितने भी मुलाजमीन के बच्चे हैं उन सबको मिलकर भी एक पिटीशन करनी पड़ेगी। पिटीशन करें, अगर वक्त पड़े, ज़रूरत पड़े तो तैयारी करें और सड़कों पर आएँ और सड़कों पर निकलें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे पुरअमन एहतजाज। बाजी पानी है, बिजली है, गैस, सब कुछ ही तो है। सर पेंशन हमारी स्टार्ट हो जाए, बाकी निपटते रहेंगे। पेंशन तो स्टार्ट नहीं, हम उठा रहे हैं आवाज़, इस पे उठा रहे हैं आवाज़। असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। वसीम भाई उठा चुके और वसीम भाई ने उठाई आवाज़। और पेंशन देखें, 1500 लोगों की पेंशन तो स्टार्ट करें यार। ग्रेजुएटी ना दे, अभी कम्यूटेशन ना दे, प्रोविडेंट फंड ना दे। दरिया में पानी कम है और वे सर 6 केनाल पानी से निकाल रहे हैं। और जबकि आप सबको पता है, हमें भी पता है कि जो सिंध में रहते हैं, कराची, हैदराबाद समेत पूरी सिंध का पानी जो है, कराची में भी पानी, कराची वहाँ से आता है, वो भी मैं मुख्तसरन कहूँगा, मुख्तसरन कहूँगा, मुख्तसरन हुकूमत सिंध कराची को जो एलोकेटेड कोटा है पानी का वो दे, और वफाक सूबा सिंध के लिए
वाटर रिकॉर्ड और इरसा के तहत जो पानी का कोटा मुकर्रर है वो सूबा सिंध और सिंध के अवाम को हर हाल में मिलना चाहिए।